غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کے بعد مشرکین مکہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، کیونکہ اس جنگ میں مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ مارے جانے والے لوگوں میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کے نام شامل تھے۔ مکہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان لوگوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو جنگ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور اپنے لوگوں میں بدلے کی آگ بھڑکانا شروع کر دی۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری کو 1 سال جاری رکھا اور پھر غزوہ احد کی جنگ کا وقت آ گیا جو 3 ہجری میں ہوئی۔ کفار نے 3000 لوگوں پر مشتمل لشکر تیار کیا، جن کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 تلواریں تھیں۔ لشکر کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے اور گھوڑوں والے اسکواڈ کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ یہ دونوں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید پہلی بار مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے اور ان کو بھاری نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اس بھرپور تیاری کے ساتھ یہ لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس لشکر کی ساری انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط میں لکھ کر بھجوا دیتے ہیں۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی، جس میں اس لشکر کا سامنا کرنے کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پیش کی کہ مدینہ کو ایک بند قلعے میں کنورٹ کر دیا جائے اور مدینہ کے اندر رہ کر کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر کفار مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو گلی ناکوں میں موجود جوان ان کا جواب دیں گے۔ مزید گھروں کی چھت سے عورتیں بھی اینٹ یا پتھر وغیرہ پھینک کر سپورٹ مہیا کریں گی۔ یہ ایک صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی بھی اتفاق کرتا ہے، جو کہ منافق تھا لیکن ابھی تک اس کا پردہ نہیں کھلا تھا۔ یہ اس رائے سے اس لیے اتفاق کر رہا تھا کہ وہ جنگ سے دور رہے گا اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر اللہ پاک چاہتا تھا کہ مسلمان اپنے مشکل ترین وقت میں یہ جان جائیں کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ پل رہے ہیں۔ چنانچہ نوجوان صحابہ کی ایک جماعت جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جنگ بدر میں جو لوگ شامل نہیں ہو سکے تھے بڑھ کر آگے آئے اور مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، تاکہ مشرکین یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اور گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آگے آئے اور عرض کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہیں چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر مشرکین سے 2 ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت صحابہ کی رائے کی وجہ سے اپنی رائے ترک کر دی اور آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ اس جنگ میں میرے کچھ صحابہ شہید ہو جائیں گے، میرے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، لیکن مدینہ منورہ محفوظ رہے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن مدینہ محفوظ رہا۔ مسلمانوں کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا، جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ آخر کار مسلمان احد کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بغاوت کر دیتا ہے۔
वो अपने साथ 300 अफराद को लेकर वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि हम इस फौज से नहीं लड़ सकते, ये तो खुदकशी करने जैसा है। अब्दुल्ला बिन उबई चाहता तो शुरू में ही लश्कर में शामिल ना होता, लेकिन वो जानबूझकर मुसलमानों के साथ आया ताकि ऐन वक्त पर बगावत करके मुसलमानों के हौसले को कम किया जाए, इनमें खौफ फैलाया जाए। और ऐसा हुआ भी। अंसार मदीना के 2 कबीले के लोग 300 बंदों को वापस जाता देखकर खौफ खा गए, मगर अल्लाह पाक ने इनके दिलों को मजबूत किया, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, जब तुम में से 2 जमातों ने कसद किया कि बुज़दिली अख्तियार करें और अल्लाह उनका वली है और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अब मुसलमानों की फौज में सिर्फ 700 सहाबा कराम रह गए थे और दूसरी तरफ 3000 पर मुश्तमिल कुफार का लश्कर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े उहद पहाड़ की घाटी में नज़ुल फरमाया और यहीं पर अपने लश्कर का कैंप लगवाया। यहाँ पर एक अहम पॉइंट था, वो एक पहाड़ी रास्ता या दर्रा था जिसको बंद करना लाजमी था। अगर ऐसा ना किया जाता तो दुश्मन पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला कर सकता था और ऐसा हुआ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट को महफूज बनाने के लिए 5 माहिर तीर अंदाजों पर मुश्तमिल एक दस्ता इस दर्रे पर तैनात कर दिया, जिसके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दस्ते को सख्ती से हिदायत फरमाई कि हम जीतें या हारें, तुम लोग इस जगह को मत छोड़ना, हमारी बैक साइड की हिफाजत करना। अगर तुम देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद करने भी मत आना। अगर तुम देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं तो भी हमारे साथ शरीक मत होना। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अगर तुम देखो हमारे जिस्मों को परिंदे उचक कर ले जा रहे हैं तो भी तुम इस जगह को मत छोड़ना। इन सख्त तरीन फौजी अहकामात और हिदायत के साथ इस दस्ते को इस जगह पर तैनात करके अपनी बैक साइड को महफूज बना लिया गया। मुशरिकीन ने भी अपने लश्कर की सफ बंदी की। इनके सिपा सालार हजरत अबू सुफियान थे, राइट साइड वाले दस्ते के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद थे, लेफ्ट साइड पर अकरमा बिन अबी जहल और पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी। तीर अंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन रबिया थे। आखिरकार इसके बाद जंग का मरहला शुरू हो गया। रिवाज के मुताबिक सबसे पहले 1 वर्सेस 1 यानी एक का मुकाबला एक से वाली लड़ाई हुई। मुशरिकीन की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा अपने ऊंट पर सवार होकर सामने आया और लड़ने की दावत दी। ये कुरैश का निहायत बहादुर शहसवार था। मुसलमान इसे लश्कर का मेंढा कहते थे। इसके मुकाबले में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और एक लम्हा की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जंप लगाकर ऊंट पर जा चढ़े, फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर जमीन पर कूद गए और तलवार से ज़िबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो खुशी के साथ नारा तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नारा तकबीर लगाया और इसके बाद जंग के शोले भड़क उठे और पूरे मैदान में पुरजोर मार धाड़ शुरू हो गई। मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों से मुशरिकीन पीछे हटने लगे। हर सहाबी मुजाहिद नारा तकबीर कहते हुए दुश्मनों को तबाह करता गया। इस पहली झड़प में मुसलमानों ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शेर खुदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को धोखे से शहीद कर दिया गया। जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ाई में मसरूफ थे तो एक हबशी गुलाम जिसका नाम वहशी था, जो नेज़ाबाजी का माहिर था, नेज़ा मारकर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर देता है। वहशी को जंग से पहले ही कहा गया था कि अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद कर दे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, मगर इसके बावजूद भी जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। हजरत अबू बकर, उमर, अली, मसअब, जुबैर, तलहा, अब्दुल्ला, साद रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन जैसे कई शेरों ने जवान मर्दी और जांबाजी के साथ लड़ाई लड़ी के कुफार के हौसले टूटने लगे। जिन 50 तीर अंदाजों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पर मुतय्यन फरमाया था, इन्होंने भी जंग में अहम रोल अदा किया। मुशरिकीन घुड़सवारों ने खालिद बिन वलीद की क़ियादत में घूमकर पहाड़ी की बैक साइड से 3 हमले किए, मगर इन 50 तीर अंदाजों ने इन हमलों को नाकाम बना दिया। खालिद बिन वलीद इस रास्ते को पार नहीं कर सके।
कुछ देर तक इसी तरह शदीद जंग जारी रही। छोटा सा इस्लामी लश्कर 3000 की फौज पर पूरी तरह भारी रहा। कुरैश पूरी ताकत लगाने के बावजूद नाकाम होने लगे और पीछे हटने लगे। देखते ही देखते पूरे लश्कर में भगदड़ मच गई और कुफार भाग खड़े हुए। इस आलम में मुसलमान इनके पीछे भागते रहे और तलवार चलाते रहे। मुसलमानों में से एक गिरोह माले गनीमत यानी सामान समेटने लगा, क्योंकि मुसलमान 90% ये जंग जीत चुके थे। मगर इधर मुसलमानों से एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसने फतह को शिकस्त में बदल डाला। 50 तीर अंदाजों का मुसलमानों का वो ग्रुप जो दर्रे की हिफाजत कर रहा था, जब इन्होंने देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो वो भी माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए भाग खड़े हुए। इनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए कि दर्रे को किसी सूरत नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर भी वो 35 या 40 लोग ये कहकर चले गए कि ये हुक्म जीत की सूरत में नहीं है, अब हम जीत चुके हैं। बस ये लोग माले गनीमत समेटने के लिए लश्कर में जा मिले। हजरत खालिद बिन वलीद जो 3 बार इस मोर्चे पर हमला कर चुके थे मगर नाकाम रहे थे, इस मौके को देखकर निहायती तेजी से चक्कर काटकर इस्लामी लश्कर की बैक साइड पर जा पहुंचे। अब वहां पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में सिर्फ 15 या 10 तीर अंदाज मौजूद थे। ये लोग खालिद बिन वलीद के लश्कर का मुकाबला ना कर सके और शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद के लश्कर ने मुसलमानों की बैक साइड से एक जोरदार हमला किया। जब मुशरिकीन को इस हमले का पता लगा तो वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े। अब मुसलमान दोनों तरफ से घिर चुके थे। ये हमला इतना शदीद था कि मुसलमानों में भगदड़ मच गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 सहाबा कराम के साथ पीछे तशरीफ फरमा थे। मुशरिकीन के इस हमले को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 रास्ते थे, या तो खुद को किसी महफूज मकाम पर ले जाया जाए और अपनी जान बचाई जाए, या फिर सहाबा कराम को इकट्ठा किया जाए और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जाए। लेकिन इस काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को शदीद खतरा था, क्योंकि मुशरिकीन ने मुसलमानों को दोनों तरफ से घेर लिया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान खतरे में डालकर सहाबा कराम की जान बचाने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत बुलंद आवाज से सहाबा कराम को पुकारा कि अल्लाह के बंदे इधर आओ। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये आवाज मुशरिकीन के कानों में भी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये आवाज सुनकर मुशरिकीन को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं मौजूद हैं। उनका एक दस्ता हमला करने के लिए मुसलमानों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि की हिफाजत 9 सहाबा कराम कर रहे थे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया, मगर इनमें से 7 सहाबा कराम शहीद हो गए। बाकी 2 सहाबा कराम रह गए थे, इसलिए मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए और आपके सर पर जख्म लगने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खून से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से खून पोंछते रहे और कहने लगे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया और उसका दांत तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। इस पर अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई, आपको कोई अख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे कि वो जालिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें सिर्फ ज़हरी गुस्से में कही थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार, मेरी कौम को बख्श दे, इनको मालूम नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों को एक और बड़ा नुकसान हुआ। सहाबा कराम में ये खबर फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनकर मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। कुछ लोगों ने लड़ना ही रोक दिया, ये कहकर के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अब वो किसके लिए लड़े। यूं मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर चढ़ाई करने लगे, मगर जल्द ही मुसलमानों के पता लग गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ये खबर सुनकर मुसलमानों ने एक बार फिर से जांबाजी का मुजाहरा किया और जवाबी हमले शुरू कर दिए।
मुसलमानों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ी के ऊपर वाली जानिब बढ़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमा तक पहुंच गए तो सब सहाबा कराम आहिस्ता आहिस्ता इधर जमा हो गए। इस वक्त मुशरिकीन ने आखिरी हमला किया, मगर ऊंचाई पर होने की वजह से यह हमला नाकाम रहा। जवाबी हमले में इनके लोग मारे गए। मुशरिकीन को अब समझ लग गई कि अब इधर मजीद हमले करने में इन्हीं का नुकसान है, लेकिन मुशरिकीन मक्का को ये यकीन हो चला था कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, इसीलिए वो वापसी की राह देखने लगे। जब मुशरिकीन ने वापसी की तैयारी मुकम्मल कर ली तो अबू सुफियान ओहद पहाड़ पर नमूदार हुए और बुलंद आवाज में बोले, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? सहाबा ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा कि तुम में अबू बकर हैं? फिर से कोई जवाब न आया। उसने फिर से कहा कि क्या तुम में उमर बिन खत्ताब जिंदा हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से मना फरमाया हुआ था, इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। बहरहाल अबू सुफियान को जब कोई जवाब न मिला तो उसने कहा, चलो इन तीनों से जान छूट गई। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेकाबू हो गए और बोले कि अल्लाह के दुश्मन जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं। अल्लाह ने तेरी जिल्लत का सामान बाकी रखा है। अबू सुफियान ने कहा कि हमने तुम लोगों के बंदों को मार गिराया है, आज बदर का बदला बराबर कर दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि बराबर नहीं, हमारे मकतूलीन जन्नत में हैं और तुम्हारे जहन्नुम में। आखिर में अबू सुफियान ने पूछा कि ए उमर, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा कि तुम मेरे नजदीक ज्यादा सच्चे और रास्तबाज हो। ये कहकर कुफार मक्का की तरफ वापस चले गए। ये जंग मुकम्मल तो कोई नहीं जीत सका। शुरू में काफिरों का नुकसान ज्यादा हुआ और मुसलमान भारी रहे, और आखिर में मुसलमानों का ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। कुरान और हदीस पाक के मुताबिक ग़ज़वा बदर की तरह इस जंग में भी फरिश्तों ने हिस्सा लिया था। अगर आप ग़ज़वा बदर के बारे में जानना चाहते हैं तो साइड में दी गई फर्स्ट इमेज पर क्लिक करें। ग़ज़वा खंदक के बारे में जानने के लिए नीचे वाली इमेज पर क्लिक करें। मजीद इन तमाम वीडियोस के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से क्लिक करके भी वीडियो वॉच कर सकते हैं।